Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We provide you support for IIT JEE, then UPSC, MPSC, SSC exams, CBSE classes from 6 to 12 and NEET UG. So enroll with our Unacademy Plus subscription with flat 10% off discount and ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So welcome to the class friends. Dear learners, I am Trupti Deshmukh. I have done Masters of Computer Engineering. I am teaching you with the subjects like programming in Python, C, C++, Java, Android application development, C Sharp and ASP.NET. So before moving the forward, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें. So friends, let us start with our new session. Hi friends, in last lecture we have seen the introduction to the strings. So in today's lecture we are going to study some of the basic programs on the strings, that is how to perform some particular operations on the strings. So चलिए हम लोग शुरू करते हैं. So I am going to open my online Python compiler or interpreter. Open it in the new tab. Okay. So I will full screen it and let's get started. So first हम लोग देखेंगे program to traverse the string. To traverse the strings. Okay. So first of all, what is mean by the traversing? Traversing मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं? That is we are going to visit each and every element of the given context. Means यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? We are going to visit each and every character of that string and we are going to print it. So हम लोग क्या करेंगे पहले? That is by using the for loop we will try to traverse the string. Okay, उसके लिए हमको क्या करना है पहले? So I am going to use using for loop string traversal, right? String traversal. अभी हम लोग लेंगे for loop, okay? Using for loop. So to traverse the string हम लोगों को पहले क्या करना है? We have to take the input from whom? User, right? So st is equals to input and what I am going to write here? Enter the string true traverse. ओके. देन नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू ट्रैवर्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यूजिंग द फॉर लूप. फॉर ch in st is my original string. I am going to print what? Print ch. Ch is what? Every character in this string which is going to be print. So shell is clear. Then directly try to run it. Yes, enter the string to traverse. So I am going to write hello world, right? Okay, yes, hello world. It is my string which is going to be traversed character by character. Okay, this is one of the easiest method to traverse your string. You can use another loop also, that is we can traverse this string using the while loop also. So we will try to run the same program using the while loop also. So just I will try to erase this for loop. Otherwise I will better use the same for loop and a while loop in the same program using while loop traversing. While loop for traverse. अभी देखिए, अभी while loop लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले we have to initialize our index to 0 because while loop is what? It is going to iterate your particular index by the given increment. So अभी हम लोग क्या करेंगे? While index is less than or equal to length of our string. That is what? How I am going to calculate the length of my string using the length function. Okay. Suppose the length of your string is what? 5. That is, and index is what? It is going to start from 0 to that particular index. So
for each increment the character is going to be print. ठीक है, while index is less than or equals to length of the string, that is the string length, I am directly going to print st, that is string of index, and then I am directly going to increment my for loop. So how to increment the for loop and how to increment the while loop? देखिए फॉर लूप में हम लोग कैसे करते हैं, फॉर सी एच इन, ये क्या कर देता है आपको, ऑटो इंक्रीमेंटेशन देता है. अगर आपने इसको कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो बाय 1 इंक्रीमेंट करेगा. सो टू यूज दी वाइल लूप वी हैव टू इनिशियलाइज द इंक्रीमेंट वैल्यू, दैट इज काउंटर. यहाँ पर हम लोगों ने काउंटर कौन सा लिया है, इंडेक्स. सो आई एम गोइंग टू डू इंडेक्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1. ओके, ट्राई टू क्लियर द शेल एंड रन द प्रोग्राम. Okay, before that I will print here traverse using the while loop, so that we will have better idea about it. Traverse using while loop. So run it, enter the string to traverse, hello world, and I am going to enter it. Yes, traverse using the while loop, hello world. Okay, यहाँ पर अभी देखिए एरर क्या आ चुका है. देखिए एरर क्या बताता है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. सो ऐसा एरर क्यों आ रहा है, देखिए हम लोगों ने क्या किया था, इंडेक्स स्टार्टिंग विद 0 एंड लेस देन और इक्वल टू लेंथ. ओके, लेंथ क्या होती है जनरली, अभी देखिए जितनी अगर 5 है तो लेंथ आपकी 5 रहेगी, पर इंडेक्स क्या होगी 0 1 2 3 एंड 4. दैट्स वाई इट इज गोइंग टू शो यू एरर, दैट इज स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली लेस देन लेना पड़ेगा, नॉट लेस देन और इक्वल टू. ओके, सो आई एम गोइंग टू डिलीट इट, क्लियर इट and try to run it. Hello world. Okay, yes, now the error is gone. So I hope you understood how to use the for loop and how to use the while loop to traverse the particular string. Okay, we have seen the for loop as well as the while loop also. So easily we can traverse the program and we can have the output. Okay, so I will clear the shell and delete this. And the next program which we are going to study is the program to count how many times a particular character occurs in the string. Okay, सो देखिए सपोज हम लोगों की एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग मिली है, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड. सो हेलो वर्ल्ड में वी हैव टू काउंट, दैट इज हाउ मेनी टाइम्स एल इज देयर इन द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड. सो दैट किस बात की है, वी विल स्टार्ट विथ एक्चुअल लॉजिक. सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू एंटर द स्ट्रिंग इनपुट, एंटर द स्ट्रिंग इन विच वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द कैरेक्टर इज प्रेजेंट. ओके, स्ट्रिंग तो हम लोगों ने ले ली, अभी हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू टेक द इनपुट ऑफ कैरेक्टर आल्सो. सपोज आई हैव टू सर्च द एल एंड दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इज आल्सो गिवन बाय द यूजर. ठीक है, तो फिर वो भी ले लेते हैं हम लोग. सी एच इज इक्वल्स टू इनपुट एंड आई एम गोइंग टू राइट लाइक दैट, एंटर द कैरेक्टर टू बी सर्च्ड. अभी हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप ले लेंगे और उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर काउंट चाहिए. फॉर आई इन एस टी इफ आई इज इक्वल्स टू व्हाट आई एम गोइंग टू हैव, आई एम गोइंग टू हैव दी सी एच. दैट इज अगर आई इज इक्वल्स टू सी एच है, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर हमको मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू इंक्रीज अवर काउंट. काउंट इज इक्वल्स टू काउंट plus 1. Otherwise we can write like this also, count plus is equals to 1. दोनों का मीनिंग सेम है. दिस इज व्हाट, नथिंग बट द शॉर्टकट टू हैव द काउंट इनिशियलाइजेशंस. देखिए काउंट प्लस मीन्स व्हाट, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1. सो वी विल ट्राई टू ट्रैवर्स इट एंड लास्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू हैव द प्रिंट. ओके, उससे पहले हमको क्या करना है, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, बट वी हैव नॉट इनिशियलाइज द काउंट येट, सो इनिशियलाइज इट हियर, काउंट इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो हम लोग यहाँ पर अभी लिखेंगे डायरेक्ट नंबर ऑफ टाइम्स कैरेक्टर
कौन सा कैरेक्टर है हमारा? कैरेक्टर हमारा कौन सा है? CH इज देयर, लाइक CH occurs in the given string is what? Count. Okay, so I am going to directly print what? Count. ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं? यस, शेल इज क्लियर. ओके, देन ट्राई टू रन इट. ओके, जस्ट रन इट. या हियर इज एरर. ओके, एरर क्या आ रहा है? इंडेंटेशन इज एक्सपेक्टेड इनसाइड द ब्लॉक. ओके, हम लोगों ने ये फ्लिप लिया था पर प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं दिया तो फिर वो दे देते हैं. एक्चुअली इट शुड टेक द इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली. नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल गिव इट. ओके, जस्ट ट्राई टू रीरन इट. Okay, enter the string hello world. Okay, enter the character to be searched. Suppose I am going to traverse and search the character what? L. Yes, number of times L characters occurs in the given string is 3. Okay, suppose I am going to rerun it. Hello world, hi. Enter the characters to be searched. H. ओके, शायद मेरी तरफ से कोई एरर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से रीरन करके देखते हैं. अगर कीबोर्ड की एक आध की भी दब जाती है तो ऐसे एरर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. हेलो वर्ल्ड, हाय. ओके, एंटर कैरेक्टर टू बी सर्च्ड. एच. यस, नंबर ऑफ टाइम्स कैरेक्टर एच ऑकर्स इन द गिवन स्ट्रिंग इज 2. आप लोग देख सकते हैं ये जहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. I hope you understood the concept. It is how to use this one of the operation of the strings. But let me tell you about this that it is case sensitive. अब for example देखिए hello hi. Okay, अभी हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल h लिखते हैं. देखिए, number of times h occurs in the given string is, that is small h, that is lowercase h is what? 1. Because the ASCII values of capital letters and small letters are different. That's why it is not going to show you the mixing of both. आपको अगर कैपिटल लेटर सर्च करना है तो उसके लिए डिफरेंट लिखना पड़ेगा, अगर लोअर केस लेटर लिखना है तो उसके लिए डिफरेंट कैरेक्टर और डिफरेंट स्ट्रिंग्स लिखनी पड़ेंगी. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दैट इज हाउ टू find out whether the particular character is having in the string and its particular count. So now next program हम लोग देखने वाले हैं, that is to count the frequency of the vowels in the given string. Okay, so just we will start with that program to count the frequency of vowels in the string. ओके, देखिए वोवेल्स क्या होते हैं आप लोगों को तो पता ही होगा. A-E-I-O-U आर नथिंग बट व्हाट? दी वोवेल्स विच आर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. सो उसके लिए हम लोगों को पहले क्या करना है? देखिए, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं. सो वी हैव टू ट्रैवर्स द स्ट्रिंग एंड वी हैव टू सर्च whether the string is having vowels or not, and then we are going to have the frequency count of that particular vowel. So st is equals to input and I am going to take, that is enter the string for the frequency count of vowels. Okay, अभी हम लोग इसके बाद क्या करेंगे? अभी हम लोगों को काउंट तो करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? काउंटर लेना पड़ेगा. सो फिर वोवेल्स कितने हैं? एक तो A-E-I-O-U एंड कैपिटल A-E-I-O एंड U. ठीक है, तो हर एक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक अलग लॉजिक लिखना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू काउंट ईच एंड एवरी वॉवेल हियर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ इट. अभी हम लोग क्या करेंगे? काउंट लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इनिशियलाइज. सो ए के लिए 0, देन आई एम गोइंग टू टेक फॉर A-E-I, देन O एंड लास्टली U. ओके, ये सब क्या है? ये पर्टिकुलर हमारे वॉवेल्स के हैं काउंटर्स. सो अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर CH इन पर्टिकुलर स्ट्रिंग. स्ट्रिंग कौन सी है? हमारी ST, राइट?
सो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अभी कंपैरिजन करेंगे, दैट इज वी आर गोइंग टू चेक वेदर द कैरेक्टर इज वोवेल और नॉट। इफ नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर सी एच इज इक्वल्स टू ए। ओके, ए क्या है अपना, एक वोवेल है, वो क्या है, लोअर केस लेटर है, बट यहाँ पर क्या होता है, अपर केस लेटर भी आता है, ए कैपिटल ए एंड स्मॉल है, तो उसके लिए क्या करना है हमको, और लेना है, और सी एच इज इक्वल्स टू स्मॉल ए। देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू इंक्रीमेंट द काउंटर ऑफ ए। काउंटर ऑफ ए हम लोगों ने क्या लिया था, ए, सो ए प्लस इज इक्वल्स टू 1, डायरेक्टली आई एम गोइंग टू हैव दिस शॉर्टकट। Okay, so just we will try to run for this and then we will have the other outputs also. So I am going to print directly the count of vowel a. Okay, हम लोग डायरेक्टली ले लेंगे इसको, a और a in string is what, a. Okay, so clear the shell here and what I am going to run it. Okay, enter the string. Suppose I am going to write like that, apple, and my string is apple now. Oops, it's vanished again, so I will rerun. कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी ऐसा एरर आ जाता है। एप्पल, यस, द काउंट ऑफ वोवेल ए और ए इन द स्ट्रिंग इज 1। ओके, सो इसको थोड़ा सा और हम लोग क्या करेंगे, ट्राई टू रिप्रेजेंट इट मोर रीडेबल। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, एस्केप सीक्वेंस ले लेंगे। हाउ टू यूज दिस एस्केप सीक्वेंस वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर, \a। ओके, जस्ट ट्राई टू रन इट and enter the string apple. Okay, it is what, 1. so वैसे हम लोग क्या कर रहे थे, अभी बाकी कैरेक्टर्स जो बचे हुए हैं ए ई आई ओ यू, उसके लिए भी ले लेंगे। सो कैसे लेने हैं, एल इफ, दैट इज एल सिफ। क्या करेंगे फिर, सी एच इज इक्वल्स टू ई, राइट, नेक्स्ट वन इज ई, और सी एच इज इक्वल्स टू ई। देन हम लोग क्या करने हैं, किसका काउंट बढ़ाने वाले हैं, ई प्लस इज इक्वल्स टू 1। then L if CH is equals to I, or CH is equals to capital I, then what I am going to increment, I am going to increment the count of what, I. Okay, same in the case L if CH is equals to O, or CH is equals to O, right, I am going to increment the count of O. O plus A is equals to 1, right. Then next what is remaining, A E I O U. Okay, लिख लो वो भी, L if CH is equals to U, or CH is equals to capital U. What I am going to increment, U plus is equals to 1. Okay, so अब हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही बाकी का प्रिंट करके लेंगे, ठीक है। आई विल कॉपी एंड पेस्ट दिस, ए ई आई ओ एंड यू। ओके, यू इज देयर, हियर इज यू, यू, ओ, हियर इज ओ, एंड हियर इज कैपिटल ओ, कैपिटल आई, then small I, and its count. अब ये क्या रह गया है हमारा, E, right, here is E and here is E. Okay, so let's try to run it. If there is any error, no problem, we will solve it. Enter the string hello world, hi. Okay, यहाँ पर क्या है, हम ठीक है, U भी नहीं आया है इसलिए उसका काउंट है 0, और A भी नहीं आया है इसके लिए, इसलिए उसका काउंट है 0। O 2 टाइम्स आया है, इसके लिए उसका काउंट है 2। ओके, एक बार फिर से हम लोग रन करके देखते हैं, E और I दोनों एक बार आए, यस, वी विल ट्राई टू रन A E I O U, A E I O U, दोनों का
2 times आना चाहिए. Okay, the program is running correctly. I hope you understood. That is how to count the frequency of the vowels in the given string. यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एक फॉर लूप के अंदर क्या किया है, कंडीशनल चेकिंग की है और डायरेक्टली उसका काउंट जो है यहाँ पर प्रिंट करके लिया है. अभी नेक्स्ट प्रोग्राम है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, वी हैव टू रिप्लेस द वॉवेल्स इन द स्ट्रिंग विथ पर्टिकुलर सिम्बल्स. वो कैसे करना है हम लोग देखते हैं. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये पुराना कोड जो है वो डिलीट कर देंगे. ओके, सो यस, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, द प्रोग्राम टू रिप्लेस the vowels in the string with one particular symbol. Suppose I am going to take here is asterisk. Okay, अगर vowel मिलता है आपको तो उसको क्या करना है, we have to replace it with the asterisk symbol, right? Okay, so अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू स्ट्रिंग लेंगे क्योंकि हमको पुराने स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं करना है. रिप्लेसिंग करनी है मतलब क्या, थोड़े चेंजेस होंगे, तो हम लोगों को उसके लिए क्या चाहिए, न्यू ब्लैंक स्ट्रिंग. आई एम गोइंग टू टेक इट हियर एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फर्स्टली वी विल प्रिंट ओरिजिनल स्ट्रिंग, दैट इज ओरिजिनल स्ट्रिंग इज, एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट दी ओरिजिनल स्ट्रिंग हियर. ओके, ओरिजिनल स्ट्रिंग चलो प्रिंट करके लेते हैं हम लोग. ठीक है, वो प्रिंट करके ले ली. अभी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि वोवल उसके स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं. Is there vowel present inside your string or not? For ch in st, what I am going to do, if ch in, अगर ch कौन सा है, a e i o u और a e i o u, इसका मतलब क्या होगा, अगर आपका ch है, ये जो लेटर्स है, वो ये जो वॉवेल्स है, इनमें से अगर कोई एक है तो हम लोगों को क्या करना है, उसका डायरेक्टली रिप्लेसमेंट करके लेना है. तो फिर ठीक है, वो करके लेते हैं. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, न्यू एस टी आर इज इक्वल्स टू, जो कि हम लोगों ने ब्लैंक के लिए लिए, न्यू एस टी आर प्लस हम लोगों को उसका रिप्लेसमेंट किससे करना है, अगर वॉवेल आ गया तो उसका रिप्लेसमेंट होगा एस्ट्रिक के साथ, दैट इज विथ स्टार. ओके, अगर ऐसा नहीं है, दैट इज एल्स, न्यू स्ट्रिंग जो है वो एज इट इज रह जाएगी. ठीक है, दैट इज न्यू एस टी आर इज इक्वल्स टू new str plus its original character plus ch. Okay, and lastly I am going to print it, that is print new string is, and then I am going to print the new string, that is what, new str, right? So clear the shell and try to run it. Okay, enter the string hello world. Okay, now yes, it is running correctly. You can see here the original string is what, hello world. Now you can see here E is replaced with the asterisk and O is also replaced with the asterisk, and if you see O of world is also replaced with asterisk. Okay, so I will rerun it again, a e I o u, hi, hello, something like that. Okay, कुछ तो invalid syntax, मुझसे कुछ तो बटन दब गया गलती से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. क्लियर द शेल अगेन एंड ट्राई टू रीरन इट. ओके, हाँ, ए ई आई ओ यू, क्या था अपना इनपुट, हेलो एंड हाय. ओके, यू कैन सी हियर ए ई आई ओ यू is replaced with star, that is asterisk, and you can see here e o and hi. Yes, our program is running correctly and as per our expectation. I hope you understand that is how to use the simple techniques to use them in the string operations. Okay, so now we will see the most asked program in the examination, that is how to reverse a particular string. Use a single line we can do this also. Okay, so we will see that also, that is the program to reverse the given string. Okay, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अभी इसका फॉर लूप यूज़ करके हम लोग स्ट्रिंग का रिवर्सिंग कर लेते हैं. सो ओके, आई शुड नॉट हैव डिलीटेड द फर्स्ट लाइन, दैट इज इनपुट, यह हमको हमेशा लगेगी एंटर द स्ट्रिंग. यस,
नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, स्ट्रिंग रिवर्सर इन द सेम स्ट्रिंग इटसेल्फ। अब हम लोग क्या करेंगे, विदाउट यूजिंग द न्यू स्ट्रिंग आई एम गोइंग टू रिवर्स द ओरिजिनल स्ट्रिंग हियर। सो उसके लिए क्या कर लगेगा हमको, फॉर आई इन, अभी नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द range that is -1, that is -1 is what, the last index of your particular string। नेगेटिव नंबरिंग अगर आपको याद है -1 -2 -3 रिवर्सल में जाएगा, तो हमको क्या चाहिए, हमारी स्ट्रिंग रिवर्स चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू हैव आवर पर्टिकुलर रेंज इन -1, then -1, then I am going to have the reverse, that is minus length of st, name of my string is st, and I am going to decrement the string by -1। ओके, देन आई एम गोइंग टू हैव द कोलन हियर। अगर आप लोग कोलन नहीं दोगे तो क्या इंडेंटेशन नहीं होगा, सो जस्ट ट्राई टू हैव द इंडेंटेशंस। ठीक है, अब ये हो गया। हम लोग क्या करेंगे, अभी सिंपली स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे, st ऑफ आई। देखिए हम लोगों ने अभी यहाँ पर क्या करें, यूजिंग सिंगल लाइन फॉर आई इन रेंज हम लोगों ने क्या किया है, वी आर गोइंग टू ट्रैवर्स फ्रॉम द रिवर्स, दैट इज फ्रॉम -1, दैट इज लेंथ इज गोइंग टू बी डिक्रीमेंटेड बाय -1 ऑल्सो, एंड आई एम गोइंग टू हैव द रिवर्सल ऑफ दिस थिंग। देखिए अब तक हम लोगों ने क्या देखा है, रेंज अगर आपको इंक्रीमेंट करनी है तो उसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं, दैट इज बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू इंक्रीमेंट, बट इन केस ऑफ द डिक्रीमेंट यू हैव टू यूज द रेंज आल्सो। एंड यस, आपको बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट भी सिर्फ एक से ही होगा। आपको अगर 2 से 3 से इंक्रीमेंट करना है पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है या वो पर्टिकुलर इनिशियलाइजेशन वेरिएबल है या काउंटर है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू डिफाइन द रेंज फॉर दैट। सो वही हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में कर रहे हैं। सो क्लियर दिस शेल एंड ट्राई टू रन इट, एंटर दिस स्ट्रिंग हेलो एंड आई एम गोइंग टू एंटर इट, OLLE। ओके, फिर से रन करके देखते हैं। एच जो है हमारा गायब हो गया है, मे बी इट इज प्रिंटिंग मिस्टेक, OLLE। ओके, अभी हम लोगों ने क्या किया, लेंथ से स्टार्ट कर दिया है, माइनस लेंथ से स्टार्ट कर दिया है, तो उसके साथ हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, -1, दैट वी हैव फॉरगॉटन हियर, दैट इज माइनस लेंथ ऑफ st -1। सो वो क्या करेगा, लास्ट तक h तक जाएगा। ओके, सो यहाँ पर क्लियर करके दीजिए एंड जस्ट ट्राई टू रन इट, एंटर द स्ट्रिंग हेलो। ओके, OLLEH। ओके, लास्ट का लेंथ -1 क्या आता है, जे 0th एलिमेंट आता है, जो कि क्या है अपना इंडेक्स, h की इंडेक्स क्या है, 0 है। अगर हम लोग के -1 नहीं देते हैं तो जो 0 तक नहीं जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द -1 रेंज फॉर हैविंग द लास्ट एलिमेंट, दैट इज 0th एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। सो आई विल हैव टू सम डिफरेंट इनपुट, हेलो हाय वर्ल्ड। ओके, ऐसे कुछ तो हम लोग लिखते हैं, यस वर्ल्ड hi and you can see hello, yes it is running exactly and as per our requirement। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ वही स्ट्रिंग जो है फॉर लूप लेकर रिवर्स प्रिंट कर रहे हैं। सो व्हाट इफ आई हैव टू यूज द गिवन स्ट्रिंग इन द न्यू स्ट्रिंग, एक न्यू स्ट्रिंग लेना है, उसको इनिशियलाइज करना है और हमको क्या करना है, वो स्ट्रिंग की वैल्यूज जो है दैट इज रिवर्स इज गोइंग टू बी रिटर्न इन द न्यू स्ट्रिंग। सो देखते हैं वो भी कैसे करना है हम लोगों को ना। ओके, ये स्ट्रिंग तो रहने देते हैं, given string in the same string था, now the given string in the new string। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने ले लिया इसका इनपुट, दैट इज स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल न्यू स्ट्रिंग लेनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले इनिशियलाइज। ओके, रिवर्स स्ट्रिंग आई हैव टेकन दैट इज विद द एम्प्टी स्ट्रिंग। अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, अभी यहाँ पर क्या करना है, सेम वही लॉजिक लगाना है, बस हमको क्या करना है, रिवर्स के लिए वही स्ट्रिंग रिवर्स में कॉपी पेस्ट करके लेनी है। सो डायरेक्टली नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज डायरेक्ट असाइनमेंट ऑफ स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेसिबल इन आवर पाइथन प्रोग्रामिंग। सो क्या करना है हमको, सेम वही स्ट्रिंग दैट इज -1, देन नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, माइनस लेंथ ऑफ st -1 एंड देन -1। ओके, दैट इज रिवर्स स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, अब हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स स्ट्रिंग प्लस str ऑफ आई। ओके, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, इसका मतलब क्या हुआ, सेम आई विल राइट इट इन कमेंट, दैट इज रिवर्स str प्लस इज इक्वल्स टू, अभी हम लोग क्या करेंगे, str ऑफ आई एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट
the reverse of string is I am going to write like that, revstr. Okay, and I am going to print the original string. The original string is, okay, what is my original string here? st, right? st. Okay, just I will clear the shell and try to run it. Okay, now enter the string. Suppose my string is hello world. ओके, यहाँ पर एक एरर आ गया है. कौन सा एरर आ गया है देखिए. What it is trying to say, that is in line number 7, type object is not subscriptable. Okay, line number 7 is what? revstr plus is equals to str of I. ओ, हम लोगों ने क्या कहा, डायरेक्टली टाइप को यूज़ किया और हमारी स्ट्रिंग क्या थी, st थी. तो फिर ओरिजिनल स्ट्रिंग वी हैव टू यूज. str इज व्हाट? इट इज द टाइप ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज str. आप लोग देख सकते हैं क्या है, एक पर्टिकुलर कीवर्ड है अपने पाइथन का. st of I. Clear the shell and try to rerun it. Hello world. Okay, original string is hello world and the reverse of the string is, you can see here, hello world is written in the reverse order. Okay, so easily we can have the original strings reversal in the same string, or we can have the original strings reverse in the new string. Okay, the both techniques you can use for having the reversal of the strings as per your requirement and the program's need. Now next program जो है वो हमको क्या देखना है, to check whether the given string is palindrome or not. I hope you have studied how what is meant by the palindrome. Palindrome means what? नंबर का palindrome हम लोगों ने देखा है, that is the original number and the reversal of the number both are the same. So same वैसे ही palindrome कहाँ पर होता है, रिवर्स में भी, that is reverse of the string में भी आपको applicable होता है. तो फिर यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, द प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर द गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट. सो हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रोग्राम में मॉडिफिकेशंस करेंगे. प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर्ड स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट. व्हाट इज मीन बाय पैलिंड्रोम? रिवर्सल ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम एज द ओरिजिनल. That is reversal of the string is same as the original. Okay, so string ले ली हम लोगों ने. क्या करना है अभी, सिर्फ एक कंडीशन डालनी, that is if reverse of string is equals to original string, then the given string is what? Palindrome. Otherwise it is not palindrome. ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है, the original string is and the reverse of the string is. ठीक है, अभी हम लोग सिंपली एक इफ कंडीशन डालेंगे, इफ st इज इक्वल्स टू रिवर्स str, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू प्रिंट दी स्ट्रिंग का नाम क्या है हमारा, ओरिजिनल स्ट्रिंग st इज व्हाट, पैलिंड्रोम, राइट. अदरवाइज इट इज व्हाट, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, एल्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, द स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, प्रिंट द स्ट्रिंग. ओके, डबल कोट्स में हम लोग लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं. द स्ट्रिंग, थोड़ा सा स्पेस डाल दीजिए ताकि हमको क्या होगा, इजीली आइडेंटिफाई होगा. स्ट्रिंग कौन सा है अपना, st इज not palindrome, is not palindrome. ठीक है, अगर वो स्ट्रिंग और उसका रिवर्स जो है वो सेम होता है तो क्या होता है, पैलिंड्रोम होता है. सो जस्ट क्लियर द शेल. यहाँ पर हम लोग लिखते हैं चेक इफ द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम. ओके, ट्राई टू रन इट. ओके, एंटर द स्ट्रिंग hello. ओके, द स्ट्रिंग हेलो इज़ नॉट पैलिंड्रोम, क्योंकि हेलो का ओरिजिनल जो है वो उसके रिवर्स के बराबर नहीं होता है. ठीक है, सो आई विल ट्राई टू हैव सम पैलिंड्रोम, दैट इज tit. Okay, the string tit is palindrome. You can see here, that is tit का रिवर्स क्या आ गया, tit आ गया. So that's why it is palindrome. Okay, so we will try another string also. Tag.
यस, द स्ट्रिंग टैट इज व्हाट? पैलिंड्रम. अभी ये थोड़ा सा डिफरेंस लेके देखते हैं. ऐसे लिखा टीट फॉर टैट. ओके, कोई तो एरर आ गया है, फिर से रिरन करते हैं. टीट फॉर टैट. Okay, tit for tat is what? Not palindrome. Okay, separate tit is palindrome, tat is palindrome. पर इसका रिवर्स देखिए क्या होता है. Tat ROF tit, which is not palindrome. Okay, so suppose I am going to write Bob. Yes, the string Bob is palindrome. Okay, I hope you understood. That is how to use the palindrome in these strings. That is, we have to apply the same the reverse logic, and then we will have to check the simple condition, that is, if the original string is equals to reverse of that particular string, then that string is palindrome, otherwise it is not palindrome. So the next program which we are going to see is to find out whether there are some lowercase letters, uppercase letters or digits are present in our given string is not. Okay, so I am trying to delete these things and just we will check it. Now I am going to check, that is the program to count. Suppose I am going to count the total number of what, that is digits are present or not, that is lowercase letters are present or not, or uppercase letters are present or not in our given string. Is count, to count the total number of digits, then lowercase letters and uppercase letters, and uppercase letters in the given string. ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. उसके लिए क्या करना है, हम लोगों को एक स्ट्रिंग लेनी है. st इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर दी स्ट्रिंग, राइट. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए स्ट्रिंग के कुछ इनबिल्ट मेथड्स और फंक्शन है, जैसे कि इज डिजिट और इज लोअर और इज अपर. ठीक है, वो डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे हम लोग. अभी उसके लिए क्या करना है, फॉर ch इन st. ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली क्या कर लिया, फॉर लूप यूज़ कर लिया. नाउ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली, इफ ch डॉट इज डिजिट, दैट इज अगर ch जो है कैरेक्टर जो है वो डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका काउंटर इंक्रीमेंट करेंगे. d इज इक्वल्स टू d प्लस 1. ओके, एल इफ ch डॉट इज अपर, अगर वो अपर केस लेटर है तो हम लोग क्या करेंगे, अपर केस लेटर के हम लोग लेंगे up इज इक्वल्स टू अप up प्लस 1. एल इफ हम लोग क्या करेंगे, एल इफ ch डॉट इज लोअर, देन हम लोग क्या करेंगे, L is equals to L plus 1, or you can use the shorthand operators also, that is L plus is equals to 1. Both are correct. Okay, now I am writing L is equals to L plus 1. अभी ये तीनों को हम लोगों ने क्या किया, इनिशियलाइजेशन नहीं किया काउंटर्स का. ओके, D is equals to 0, then UP is equals to 0, and lastly what, L is equals to 0. इनिशियलाइजेशन ऑफ आवर काउंटर्स here. और हाँ, लास्ट को हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो है टोटल कैरेक्टर काउंट्स भी हम लोग लेंगे. उसके लिए कैरेक्टर काउंट लेंगे, उसके लिए सी आर इज इक्वल्स टू 0. अभी कैरेक्टर काउंट कैसे लेंगे, अपर प्लस लोअर, और बाकी के जो बचे हुए क्या है वो डिजिट्स रह जाएंगे. सो कैरेक्टर काउंट इज इक्वल्स टू व्हाट, एल प्लस यूपी. ओके, एंड लास्टली आई एम गोइंग टू प्रिंट ऑल दिस थिंग्स, दैट इज प्रिंट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ digits is what, digits के लिए क्या हम लोगों ने d, print the total number of what next is uppercase letters is, then my uppercase letters, right. कौन से है ये, UP. And lastly the total number of lowercase letters, right, the total number of lowercase letters is, and I am going to print these lowercase letters, that is what, L. Now the total numbers of characters I am also going to print the
total number of characters in the string is, then I am going to print the total numbers of characters in the string. What are these? Total number of characters के लिए क्या हमारे पास CR है, right? CR. Okay, हम लोग ये काउंट्स को यूज करते हैं. Try to rerun it. Enter the string hello. Okay, digits are 0, uppercase letters are 0, lowercase letters are 5, and total characters in the strings are 5. Okay, I will rerun it. थोड़ा सा मिक्सिंग कर लेंगे. HELLO hello space 1 2 3. Okay, whatever. Yes, the total numbers of digits is 4. The uppercase letters are only 1, that is H. The total lowercase letters are 4, and the total characters which are present in this string are what? How many are there? 5 are there. Okay, I hope you understood. That is how to use the count of the digits, uppercase and lowercase. It's so easy. You can use the inbuilt Python function for that also. Now we will see how to delete a particular character from the given string. हमको क्या करना है? The index of that particular character we have to give, and then that character will be deleted. Okay, the clearly string shell, and I am going to delete the program. Now what I am going to do? Program to remove particular character from the ith position, right? Okay, so string ले लेते हैं हम लोग. st is equals to input, enter the string, right? Enter the string. Okay, हम लोगों ने string ले ली यहाँ पर. अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली कौन सा कैरेक्टर डिलीट करना है उसकी वैल्यू ले लेंगे. ओके, c is equals to int input, enter the index of I. ओके, कौन से इंडेक्स का हमको, अरे फिर कौन से ith लोकेशन का हमको कैरेक्टर डिलीट करना है वो ले लिया. अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपली फॉर I इन रेंज. अब हम लोग क्या करेंगे? लेंथ ऑफ ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है हमारी? st है, राइट? अभी इसको क्या करना है? वो डिलीट करना है, मतलब क्या हमको उसमें चेंज करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे? हमें न्यू स्ट्रिंग ले लेंगे. न्यू str इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट? सो वो ले ली. अभी हम लोग क्या करेंगे? इफ I इज नॉट इक्वल्स टू c, मतलब अगर ये इंडेक्स नहीं है अपनी, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको डायरेक्टली इग्नोर कर देंगे, और जो इंडेक्स नहीं है दैट पर्टिकुलर ith की, वो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे? न्यू स्ट्रिंग में कॉपी करके ले लेंगे. दैट इज न्यू str इज इक्वल्स टू न्यू str प्लस क्या है हमारा? st ऑफ I. ओके, देन लास्टली हम लोग क्या करेंगे? ओरिजिनल स्ट्रिंग भी प्रिंट करेंगे, और जो हम लोगों ने ith एलिमेंट डिलीट किया है और ith पोजीशन का जो कैरेक्टर हम लोगों ने डिलीट किया है वो भी ले लेंगे. ओके, दी ओरिजिनल स्ट्रिंग इज, क्या करेंगे हम लोग? ओरिजिनल स्ट्रिंग कौन सी है हमारी? st, एंड देन द न्यू स्ट्रिंग आफ्टर क्या हम लोग करेंगे? कैरेक्टर रिमूवर. Removal is what? We will see that. What it is? New str. Okay, so just clear the shell and try to run. If there is any error, we will try to resolve it. Okay, enter the string HELLO hello. अभी हम लोग इंडेक्स कौन सी करेंगे? सपोज आई एम गोइंग टू एंटर दी फर्स्ट इंडेक्स, राइट? ओके, न्यू str इज नॉट डिफाइंड. ओह सॉरी, यहाँ पर न्यू str हमारा कौन सा है? अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर str. देन क्लियर दी शेल. कोई एरर आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट. HELLO hello. Okay, index of suppose I, what is? I am going to enter the I. Okay, look here, you can see that the original string is what? Hello, and the new string after the character remains HELLO, that is 0 1 2 3 and 4. So I have written here what? 1, that is E is deleted. Now suppose I am going to rerun it. Hello, suppose I am going to enter 4. Okay, error is there, no problem, try to rerun it.
hello. I suppose I am going to write 4. Okay, you can see here 0, 1, 2, 3 and 4. कौन सा डिलीट होना चाहिए था? Oh yes, it is running correctly and as per our expectation. So अभी हम लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ इंडेक्स लिखते हैं हेलो एंड आई एम गोइंग टू एंटर दी 5. देखिए 5 में इसने क्या किया, कोई एरर नहीं दिया क्योंकि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज थी. सो HELLO के बाद क्या आता है, डायरेक्टली एंड होता है अपनी स्ट्रिंग, क्योंकि द इंडेक्स लास्ट इंडेक्स क्या है हमारी 4 थी. दैट इज व्हाट ओ. अगर उससे भी ज़्यादा इंडेक्स आप लोग लेते हैं तो वो रन नहीं होगा. अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिख के 6. देखिए वो क्या करता है, डिलीशन नहीं कर सकता है क्योंकि क्या, वो पर्टिकुलर रेंज हमको चाहिए. अगर हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया, ओके डबल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. जस्ट क्लियर इट एंड ट्राई टू रन इट अगेन. समटाइम्स द सिस्टम गेट्स हैंग, उसके थोड़ा टाइम लीजिए. हेलो वर्ल्ड 0, 1, 2, 3, 4, 5. देखिए उसने क्या कर दिया, फिफ्थ एलिमेंट कौन सा था हमारा, फिफ्थ कैरेक्टर वॉज स्पेस, सो इट हैज डिलीटेड. यस, आवर प्रोग्राम इज रनिंग करेक्टली एंड एज पर आवर एक्सपेक्टेशन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ नेक्स्ट वी विल सी वेदर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग और नॉट. सो आई विल ट्राई टू क्लियर दिस शेड and keep the program as it is of the few lines of it. Okay, program to check whether the given substring is present in the original string or not. Okay, so now what I am going to do, okay, original string हम लोगों ने ले ली, अब हम लोग लेंगे सब स्ट्रिंग. ओके, सब स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर दी सब स्ट्रिंग टू बी सर्च्ड. अभी हम लोग क्या लगाएंगे, एक्चुअल इसका लॉजिक लगाएंगे. अभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू काउंट वेदर द पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन माई प्रोग्राम और नॉट. दैट इज काउंट इज इनबिल्ट मेथड ऑफ दिस स्ट्रिंग्स. सो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू डू इफ. अभी हमारी क्या है, ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है वो क्या है, ST है. दैट इज ST इज माई ओरिजिनल स्ट्रिंग. नाउ इफ ST डॉट काउंट ऑफ what my substring is, substring, just a minute, is greater than 0, then what I am going to do, I am going to do print yes substring. What is the name of substring? Substr. Substr is present in the string, is present in the ओरिजिनल स्ट्रिंग. ओरिजिनल स्ट्रिंग कौन सी है हमारी, ST, राइट. एल्स हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट नो सब स्ट्रिंग. व्हाट इज दैट, सब STR. यहाँ पर नाम ठीक से लिखिए. अभी क्या है, इज नॉट प्रेजेंट इन दी ओरिजिनल स्ट्रिंग. ओके, ओरिजिनल स्ट्रिंग कौन सी है हमारी, वो भी देख लेते हैं. कौन सी है, ST. ओके, जस्ट ट्राई टू क्लियर दिस शेल एंड ट्राई टू रन इट. ओके, एंटर दिस स्ट्रिंग HELLO, hello. If there is any error, we will try to resolve it. Hey, okay, yes, the substring HE is present in the original string hello. Okay, so अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको कैपिटल की जगह स्मॉल लेटर देते हैं, देखते क्या होता है. Yes, HE is not present in the original string because as I have said you before, that is ASCII वैल्यू जो होती है वो स्मॉल लेटर्स की और कैपिटल लेटर्स की वो क्या होती है, डिफरेंट होती है. इसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोग्राम रन नहीं होता है. दैट्स व्हाई द सबस्ट्रिंग एंड ओरिजिनल स्ट्रिंग में भी मस्ट बी करेक्ट एज इट इज. सपोज आई एम गोइंग टू राइट अगेन वर्ल्ड, WORL. यस, WORL इज प्रेजेंट इन दी ओरिजिनल स्ट्रिंग. अभी फिर से हम करते हैं हेलो एंड
कुछ अलग लिखते हैं. No, the substring WOR is not present in the original string hello. Okay, if you see here where we have applied the original logic actual, that is if st.count and substring is greater than 0. अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग substring का count करते हैं. अगर ये substring जो है original string में है और उसका जो count है वो greater than 0 है, तो क्या होता है, वो substring हमारे original string में मौजूद होती है. That's why we can have the easy access to identify whether the given string, that is given substring, is available in the original string or not. Okay, I hope you understood all these things and I hope you got all these different programs on the strings. देखिए string जो है बहुत complicated एक term है और complicated topic है Python का और any programming languages का. So just try to have more and more practice on strings. आप लोग string के जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा प्रोग्राम्स लोगे, हम लोगों ने तो अभी बेसिक लेवल के प्रोग्राम्स देखे थे, that is how to use, how to count the vowels, then how to reverse the string and how to find out the substring in the given string. जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, स्ट्रिंग समझने में आसानी होगी. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स एंड फॉर नाउ I will take leave from you and we will meet in the next lecture with the new topic. Till then, bye. So friends, at the end of the session, let me tell you about the Unacademy Plus and Iconic subscriptions. So let me tell you first about the Plus subscription. That is, we are going to provide you the basic plan to get you started, and its advanced version is what? Iconic. Okay, just let me tell you about what is the Plus subscription. We are having the India's best educators, the interactive live classes, live tests and quizzes also. Obviously, we are going to provide you notes using the structured courses and PDFs also. So, as per the name, the Iconic is the advanced version of the Plus. So, here what you are going to do, you are going to take your CBSE preparation to the next level and with the most benefit of personal mentors. Yes, absolutely right. You are going to have the personal mentors here using the live doubt solutions, then parent connection and study planner. Okay, it is having the same sum of the quantities or characteristics of Plus, that is India's best educators are there, then interactive live classes, live tests and quizzes also. So we are having the mega launch Mondays also, in which we are going to start the new batches to master maths, science, SST, English and Hindi full syllabus. So this is for the CBSE class 10, which is called as the mission half yearly, in which you are going to have SST, that is social sciences, then maths, science and English with top educators. And for class 9, we can solve the numericals and NCERT exercises with the maths and science subjects. So we are having the Unacademy batches also, that is we are having the new batches every Monday. For the CBSE class 9 we are having the Summer Express batch. इसमें क्या है, हम लोगों को Summer Express batch में मैथ्स है और साइंस है, और इसकी जो स्टार्ट डेट है वो है 7th June 2021 and end date is 7 July 2021. So to subscribe for class 9 and get the class 10th, 11th and 12th subscription totally free. So let me elaborate about the our Plus subscriptions and Iconic subscriptions. So friends, here you can see that for class 9 subscription we are having two, that is Iconic and Plus subscriptions. Now in under the Plus subscription you must choose for the 12 months subscription, that is for rupees 15,000, and for 36 months you can have the plan of 32,000. And if you go for the Iconic subscription, you can have the 12 months plan for 28,000 and 36 months plan for 66,000. ओके, दिस इज़ अबाउट द क्लास 9. अगर आप लोग क्या करोगे, क्लास 9 का जो सब्सक्रिप्शन लोगे उसको आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा, आपको क्लास 10, 11th और 12th का भी रहेगा. सो नाउ सेम इन द केस ऑफ क्लास 10th. ओके, अभी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्लास 10 के सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर क्या है, प्लस सब्सक्रिप्शन भी है और उसके साथ क्या है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है.
सो अगर आप लोग क्या करते हो, क्लास 10 का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको उसके साथ क्या मिलता है, 11th और 12th का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। सो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18, 24 एंड 36 मंथ्स। अगर आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो आपके लिए क्या रहेगा, ₹15,000 का रहेगा सब्सक्रिप्शन। अगर आप 36 मंथ के लिए जाओगे तो आपके लिए क्या रहेगा, 32,000 का सब्सक्रिप्शन रहेगा प्राइस। सो नाउ इन द केस ऑफ आइकॉनिक, सो 12 मंथ्स का आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 28,000 एंड 36 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका रहेगा 66,000। ओके, सो एज आई हैव सेड द प्लस का एडवांस वर्जन जो है वो हमारा क्या है, आइकॉनिक है। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल अबाउट द Unacademy Emerge. So it is what India's largest free aptitude test for class 6 to 12th, and the test date and time are 28 June 12 p.m. So there is part case, so students you can start the registrations for the same. So what is actually the Unacademy Emerge? So इसमें आपके लिए क्या रहेगा, 30 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहेंगे, देन उसमें रहेगा आपके लिए 60 मिनट्स का चैलेंज। 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने हैं, 60 मिनट्स है टोटली। एंड यस, एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। एंड अगर आप लोग ये अटेम्प्ट करते हैं और प्राइज जीतते हैं तो उस वो रहेगा प्राइज वर्थ ऑफ 5 crores. सो दैट किस बात के स्टूडेंट्स, just enroll to the Unacademy Emerge and attempt for the aptitude exam. So to win the 5 crores scholarships also available for that. Win scholarships and mega prizes like MacBook, iPhone, iPads, exciting goodies, certificate, trophies and much more worth Indian rupees 5 crore. Yes, absolutely correct. So friends, just start to enroll now for this our Unacademy aptitude test. Okay, in this you are going to have the 7 lucky winners in which you are going to win the exciting goodies every day, and this offer is valid till the date of the 7 June only. So enroll now, and yes, link जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दी है, so please वहाँ पर जाए, लिंक को क्लिक करें और आप एनरोल करना ना भूलें. इट विल बी हैविंग द फन फॉर यू, दैट इज हैविंग द एप्टीट्यूड टेस्ट विथ नो प्रिपरेशन एट ऑल. So for our Unacademy Plus and Iconic subscriptions, there is 10% discount if you use this code. That is, my code is TDLive. So if you use this, you are going to have the 10% discount on Unacademy Plus and Iconic subscription. Okay, and to download the app, Unacademy app, now you can go on to the Google Play Store, and if you are having iPhones, you can go to the Apple Play Store and download the app and install it. Then you can have all of these features for free. And yes, obviously to have the plus subscription, you can also have the subscription with the flat 10% discount with my code here, as I have entered here. So that is but case, friends, let's do it and let's crack it. Okay, so thank you for today's session. Okay, thank you students, we will meet in the next session. Till then, bye.